کہانی ہے ایک ایسی سلطنت کی جس کی پہچان وہاں کھلنے والے چنبیلی کے پھول تھے۔ دور دور سے لوگ چنبیلی کے پھولوں کی خوبصورتی دیکھنے یہاں آتے تھے۔ ایک دن ہوا تیز چل رہی تھی اور چنبیلی کے پھول خود بخود گرنے لگے۔ لوگوں نے فضا میں ایک الگ سا جادو محسوس کیا، گویا پوری سلطنت کسی جادوئی لمحے کا حصہ بن گئی ہو۔ محل میں ایک شہزادی کی پیدائش ہوئی جس کا آنا پوری سلطنت کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا۔ شہزادی کی پیدائش نے پوری سلطنت پر جادو بکھیر دیا۔ اس کے وجود سے چنبیلی کی گہری خوشبو پھیلنے لگی۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی اور جب وہ ہنستی تو اس کے منہ سے چنبیلی کے پھول گرتے تھے۔ شہزادی کی معصومیت اور جادوئی حسن سے پوری سلطنت مہک اٹھی، اسی لیے اسے چنبیلی شہزادی کہا گیا۔ چند سال بعد چنبیلی شہزادی کی ماں چل بسی اور بادشاہ نے دوبارہ شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اس نے علیشا رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا گیا اور چنبیلی شہزادی جوان اور بے حد خوبصورت ہو گئی۔ چنبیلی شہزادی نہ صرف بے حد خوبصورت تھی بلکہ اس کا دل نرمی اور نازک مزاج سے بھرا ہوا تھا۔ چنبیلی شہزادی کے حسن میں ایسا جادو تھا کہ ہر کوئی رک کر اسے دیکھے بغیر نہ رہ پاتا۔ اس کے برعکس شہزادی علیشا بد مزاج اور سخت دل کی مالک تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی شہزادی چنبیلی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی نیک سیرت سے خوش ہو کر چاہتا تھا کہ وہ مستقبل میں تخت کی وارث بنے۔ شہزادی علیشا اپنی بہن شہزادی چنبیلی سے دل ہی دل میں حسد رکھتی تھی مگر زبان سے کچھ نہ کہتی تھی۔ شہزادی علیشا شہزادی چنبیلی کی جادوئی حسن اور لوگوں میں مقبولیت سے دل ہی دل میں جلتی تھی۔ شہزادی چنبیلی اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی سوتیلی بہن کے دل میں اس کے لیے کتنی نفرت چھپی ہوئی تھی۔ شہزادی چنبیلی اپنی سوتیلی ماں اور بہن سے بے غرض محبت کرتی تھی۔ وہ انجان تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کون سی مصیبت لے کر آئے گا۔ کچھ سالوں بعد بادشاہ بہت بیمار ہو گیا، اتنی شدید بیماری کہ کوئی بھی حکیم اس کا علاج نہ کر سکا۔ بادشاہ اپنی شدید بیماری کے باعث دنیا سے چل بسے اور شہزادی چنبیلی دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ شہزادی چنبیلی دن رات اپنے باپ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ اس کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ ملکہ اور شہزادی علیشا مطمئن تھی کہ اب تخت کی وارث علیشا ہی بنے گی۔ انہیں بادشاہ کے جانے کا کوئی غم نہ تھا۔ جب سلطنت زماریہ کے بادشاہ کو اپنے دوست کی موت کا پتہ لگا تو اس نے اپنے بیٹے شہزادہ ریان کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ بچپن سے تمہارا رشتہ شہزادی چنبیلی کے ساتھ ہوا ہے۔ اب میرا دوست نہیں رہا تو یہ فرض پورا ہونا چاہیے جیسا کہ اس کی خواہش تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں والد صاحب، شہزادی چنبیلی کے لیے یہ بہت مشکل وقت ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم تیاری مکمل کرو، ہم کل وہاں کے لیے روانہ ہوں گے۔ شہزادہ ریان نے شہزادی چنبیلی کو بچپن میں ہی دیکھا تھا مگر بچپن سے ہی وہ اسے محبت کرتا تھا۔ دوسرے لوگوں کی طرح شہزادے نے بھی شہزادی کے حسن کے قصے سنے ہوئے تھے۔ شہزادہ ریان خوش تھا کہ دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی سے اس کی شادی ہوگی۔ شہزادی علیشا نہیں چاہتی تھی کہ شہزادی چنبیلی کی شادی شہزادہ ریان سے ہی ہو۔ والدہ، میں شہزادہ ریان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ یہ رشتہ ختم کروا دیں۔ یہ ممکن نہیں علیشا، ان دونوں کا رشتہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ہمارا کوئی بھی غلط قدم ہمیں تخت سے دور کر سکتا ہے۔ تمہیں تخت مل رہا ہے وہ اہم ہے، شادی کے لیے تمہارے لیے اور بھی بہت شہزادے مل جائیں گے۔ ملکہ کے منع کرنے کے باوجود شہزادی علیشا کے دماغ سے شہزادہ ریان کا خیال نہ گیا۔ اسے ہر وہ چیز چاہیے تھی جو شہزادی چنبیلی کے پاس تھی۔ آخر وہ دن آ پہنچا کہ سلطنت زماریہ سے شہزادہ ریان کی سواری محل پہنچ گئی۔ شہزادی چنبیلی کو شہزادہ ریان کی طرف سے آئے ہوئے زیور اور ملبوسات سے تیار کیا گیا اور وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شام کے وقت شہزادہ ریان اور شہزادی چنبیلی کی باغ میں ملاقات ہوئی۔
दोनों ने घंटों एक साथ वक्त गुजारा। शहजादा रयान शहजादी चंबीली के हुस्न को देखकर हैरान था कि कोई इतना हसीन भी हो सकता है। बातें करते करते शहजादे और शहजादी को रात हो गई और उन्हें यूं महसूस होने लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। शहजादी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और चाहे वक्त कैसा भी हो, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। शहजादी चंबीली और शहजादा रयान रोज बाग में मिलते और कई बातें करते। शहजादी अपने गम भूल गई। शहजादी भी शहजादे से मोहब्बत करने लगी। पहली बार किसी ने उसके दिल में जगह बनाई थी। शहजादी अलीशा हसद की आग में जल रही थी और दिल ही दिल में मंसूबा बना रही थी कि कैसे शहजादा रयान और शहजादी चंबीली को जुदा किया जाए। शहजादी अलीशा ने शाही वजीर को अपने पास बुलाया। उसके साथ मिलकर उसने एक खफिये मंसूबा बनाया। महल में शादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई थीं और आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा था। शहजादा रयान शादी के लिए तैयार हो रहा था। रात को शादी की तकरीब होने वाली थी। उधर शहजादी भी शादी का शाही जोड़ा पहनकर तैयार हो रही थी और आने वाले तूफान से बेखबर थी। शहजादी अलीशा मुतमईन थी, जैसे वो जानती हो कि ये शादी कभी नहीं हो पाएगी। शादी की तकरीब से पहले शहजादी अलीशा शहजादी चंबीली के पास आई और उसे कहने लगी कि शहजादा उससे मिलना चाहता है। चंबीली शहजादी, शहजादा रयान तुमसे मिलना चाहता है। बाहर वजीर इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें उस तक ले जाएगा। इस वक्त वो क्यों मिलना चाहता है? शायद कोई जरूरी बात होगी। शहजादी अपनी सुतीली बहन के फरीब से बेखबर वजीर के साथ जाने पर राजी हो गई। वजीर शहजादी चंबीली को महल के पिछले हिस्से से ले जाते हुए किसी कमरे की तरफ ले जा रहा था। शहजादी, इस कमरे में शहजादा रयान आपका इंतजार कर रहे हैं। वजीर ने शहजादी चंबेली की चालाकी से रहनुमाई करते हुए उसे एक नज्जी कमरे में पहुंचा दिया। शहजादे रयान कहाँ हैं? यहाँ तो वो मौजूद नहीं है। शहजादी, आपको यहाँ ही रहना होगा। शहजादी अलीशा यही चाहती है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस सब का क्या फायदा है? शहजादी, अलीशा ने मुझसे वादा किया है, अगर आपकी शादी टूट गई तो वो मुझसे शादी करेगी और हम इस सल्तनत को संभालेंगे। मुझे जाने दो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। शहजादी ने बार बार जाने की इल्तिजा की, मगर लालच ने वजीर का दिल पत्थर कर दिया था। और फिर शहजादी अलीशा ने सबके कानों में जाकर सरगोशियां शुरू कर दी कि शहजादी चंबीली और वजीर के दरमियान कोई ताल्लुक है। कुछ ही देर में कमरे के बाहर लोगों का हजूम जमा हो गया, जहां शहजादी चंबीली बंद थी। लोगों का हुजूम देखकर शहजादा रयान भी दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। शहजादी चंबीली ने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। सच जानने के लिए दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया गया। शाही मुहाफिजों ने दरवाजा तोड़ दिया और टूटे हुए दरवाजे से वजीर और शहजादी चंबीली बाहर आ गए। शहजादे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ धोखा हुआ है। ये सब मेरे लिए एक जाल था। आंखों देखी पर मैं कैसे यकीन न करूं। शहजादी, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मोहब्बत का ये झूठा ड्रामा क्यों किया? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी निकलोगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वालिदा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया गया था। शहजादी ने इस लम्हे महसूस किया कि जैसे दुनिया की हर मोहब्बत झूठी और हर एहतिबार खोखला है। मलका ये जानती थी कि शहजादी चंबीली बेकसूर है, मगर अपनी बेटी की मोहब्बत में वो खामोश रही। उधर शहजादे ने ये फैसला किया कि वो अपने मुल्क के ज़मारिया वापस चला जाएगा और दोबारा कभी शहजादी चंबीली की शक्ल ना देखेगा। शहजादी अलीशा ने चालाकी से शाही अदालत में फैसला शहजादी चंबीली के खिलाफ करवा दिया और उसे जुलावतन करने का हुक्म दिया गया। शहजादी अलीशा ने वजीर को मारने का हुक्म दे दिया,
और कहा कि उसे जंगल में ले जाकर पानी में बहा दिया जाए। शहजादी चंबीली को महल से निकाल दिया गया और मुल्क से दूर एक किले में कैद करने का फैसला किया गया। शहजादी अलीशा को शहजादे रयान के वापस जाने का कोई दुख न था। उसे शहजादे से मोहब्बत न थी। वो बस शहजादी चंबीली को कभी खुश देखना नहीं चाहती थी। शहजादी को ऐसी जगह कैद किया गया जहां कोई इंसान नहीं आता था और ये सजा उसके लिए अजाब से कम ना थी। रहाया शहजादी के जलावतन किए जाने के फैसले से खुश नहीं थी, मगर शहजादी अलीशा की ताकत के आगे सब बेबस थे। वक्त गुजरता गया और शहजादी को कैद हुए काफी अरसा गुजर चुका था। शहजादी चंबीली के जाने के बाद चंबीली के फूल मुरझाने लगे। जिस सल्तनत में हमेशा बहार रहती थी वहां अब खजां रहने लगी। शहजादी अलीशा के तख्त संभालने के बाद सल्तनत के हालात बहुत खराब हो गए। कुछ ही अरसे में सारा मुल्क भूख और अफलास का शिकार हो गया। मलका ने शहजादी अलीशा को समझाया कि वो लोगों की जानो माल का ख्याल करे, वरना सल्तनत तबाह हो जाएगी, मगर शहजादी ने एक न सुनी। वालिदा, आज के बाद अगर दोबारा आपने मेरे मामलात में दखल दिया तो मैं आपको कैद करा दूंगी। मलका को पहली दफा अपनी गलती का एहसास हुआ और शहजादी चंबेली की कमी महसूस हुई। वो उसका सग्गी बेटी जैसा ख्याल करती थी। साहिल एक आम सा लकड़हारा था जो कभी लकड़ियां काट कर और कभी मछली पकड़कर अपना गुजारा करता था। मामूल के हिसाब से वो आज भी लकड़ियां काटने आया था, मगर अपनी सोच में मगन वो आज जंगल में बहुत आगे निकल आया था जितना वो कभी नहीं गया था। चलते चलते साहिल की नजर खिड़की में खड़ी चंबीली शहजादी पर पड़ी। वो हैरान रह गया। साहिल हैरान था, ये खूबसूरत लड़की इस किले में किसने कैद की है। वापस आकर साहिल सारी रात शहजादी के बारे में सोचता रहा। इससे पहले उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। साहिल ने सोचा कि कल वो दोबारा जाएगा और जाकर लड़की से पूछेगा कि वो वहाँ क्यों कैद है। अगली सुबह साहिल जंगल से गुजरता हुआ उस किले की तरफ जाने लगा जहां उसने शहजादी को देखा था। साहिल रस्सी की मदद से किले पर चढ़ने लगा ताकि उस खिड़की तक पहुंचे जहां वो लड़की खड़ी थी। साहिल किले पर चढ़कर खिड़की से अंदर आ गया। शहजादी उसे अचानक देखकर खौफजदा हो गई। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? डरिए मत, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैंने आपको कैद में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। आप ऐसी जिंदगी क्यों गुजार रही हैं? आपको यहाँ किसने कैद किया है? चंबीली शहजादी ने रोते हुए साहिल को सारा किस्सा सुनाया कि कैसे उसकी शादी टूट गई। ये सब सुनकर साहिल को बहुत दुख हुआ और उसने शहजादी से कहा कि वो आज रात उसे इस कैद से आजाद करा के ले जाएगा। शहजादी, ये जगह आपके काबिल नहीं है। यहाँ तो आपको एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं दिया जाता। आप यहाँ मत रहें। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं अमीर तो नहीं हूँ, मगर मैं आपकी शान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। शहजादी के लिए एक अजनबी पर एतमाद करना मुश्किल था, मगर साहिल की मासूमियत और आंखों में सुचाई देखकर शहजादी ने हाँ कर दी। रात के अंधेरे में साहिल शहजादी को किले से आजाद करा के ले गया। साहिल चंबीली शहजादी को अपनी छोटी झोंपड़ी ले आया। झोंपड़ी बड़ी नहीं थी, मगर साहिल का दिल बहुत बड़ा था। शहजादी ने साहिल के साथ रहना शुरू कर दिया और वो नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त उसे मजीद क्या दिखाएगा। साहिल चंबीली शहजादी का बहुत ख्याल करता था। वो खुद जमीन पर सोता था ताकि शहजादी को तकलीफ ना हो। दिन भर साहिल बाहर जाकर लकड़ियां काटता और मछली पकड़ कर लाता ताकि शहजादी के लिए खाने का बंदोबस्त कर सके। कभी कभार साहिल को एक ही मछली मिलती और वो लेकर शहजादी को दे देता, ये कहकर कि वो बाहर से खाकर आया है। वक्त गुजरता गया और चंबीली शहजादी भी उस माहौल से मानूस हो गई और उस छोटी झोंपड़ी को अपना घर समझने लगी। कभी कभार चंबेली शहजादी और साहिल शाम को बैठकर बातें करते। साहिल उसे अपने बचपन के किस्से सुनाता और शहजादी महल की जिंदगी के किस्से सुनाती। चंबेली शहजादी ज्यादातर संजीदा रहती थी, मगर जिस दिन वो साहिल के आगे हंसी, साहिल उसके जादुई हुस्न में खो गया।
चंबीली शहजादी खुश रहने लगी थी। साहिल की शक्ल में उसे एक मुखलिस दोस्त मिल गया था और वो पिछले गम भूल गई थी। एक कसान ने वजीर को मौत से बचाया। वो नदी के किनारे जख्मी हालत में मिला था, लेकिन उसे उसके लालच की सजा मिल गई थी। वजीर ने सोचा कि वो शहजादा रयान को जाकर सब सच बता देगा ताकि उसके जुर्म की तलाफी। वजीर ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया कि किस तरह उसने शहजादी अलीशा के कहने पर ये सब झूठ बोला, और ये सब सुनकर शहजादा अफसरदा हो गया। शहजादा ने फैसला किया कि वो वापस जाकर चंबेली शहजादी से माफी मांगेगा और शहजादी अलीशा को उसकी कये की सजा दिलाएगा। शहजादा रयान ने मलका से मुलाकात की और उसे बताया कि वो शहजादी अलीशा का सच जान चुका है और उसे सजा दिलाने वाला है। मलिका ने शहजादा रयान को बताया कि चंबेली शहजादी को जुला वतन कर दिया गया था और वो अब वहाँ के किले में नहीं है और कोई नहीं जानता वो कहाँ है। शहजादा रयान चंबेली शहजादी के लापता होने की खबर सुनकर परेशान हो गया और उसे ढूंढने के लिए शाही मुहाफिज भेजने का हुक्म दिया। शाही अदालत में वजीर ने आकर गवाही दी कि चंबेली शहजादी बेकसूर थी और ये सब उसने शहजादी अलीशा के कहने पर किया। शाही अदालत ने मलका की दरख्वास्त पर अलीशा को मारने का हुक्म तो नहीं दिया, मगर उसे जुलावतन करने का हुक्म दिया। शाही अदालत ने और कहा कि शहजादी अलीशा को वहीं कैद किया जाए जहां चंबेली शहजादी को किया गया था। एक दिन चंबेली शहजादी जंगल में फूल तोड़ रही थी कि शाही मुहाफिज उसे तलाश करने आए और उसे ले जाने के लिए पहुंच गए। जब साहिल शाम को घर आया तो शहजादी को घर पर ना पाकर परेशान हो गया। फिर साहिल ने सोचा, शायद शहजादी उस माहौल से तंग आकर कहीं चली गई है। साहिल को शहजादी के साथ रहने की आदत थी, मगर शहजादी के जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो उसे मोहब्बत करने लगा है। महल पहुंचने पर मलका ने चंबेली शहजादी से अपने किए की माफी मांगी, मगर शहजादी ने अपनी सौतेली माँ को माफ कर दिया। मलका ने चंबेली शहजादी को बताया कि शहजादा रयान की मदद से ही वो वापस महल तक पहुंची है और अब शहजादा रयान उससे मिलना चाहता है। मलका ने चंबेली शहजादी को बताया कि उसने साहिल को महल बुलाने का हुक्म दिया है ताकि उसे इनाम दिया जा सके। साहिल, जो तुमने मेरे लिए किया है, इसके सामने हर इनाम बेमानी है। मैं इसका बदला कभी नहीं चुका सकूंगी। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। आपको ऐसे खुश देखकर ही मैं खुश हूँ और मेरे लिए यही काफी है। शहजादा रयान मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे मिलने के लिए बुलाया है। अगर तुम यहाँ रुकोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत मुबारक हो शहजादी, आप वाकई सबसे बेहतरीन चीज की मुस्तहिक हैं। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, मगर मुझे माफ करें, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। शहजादी, ये मैं आपके लिए लाया था, आपको देने का मौका नहीं मिला था। ये आपकी हैसियत के लिहाज से एक मामूली सा तोहफा है, मगर अगर आप इसे रखेंगी तो मुझे खुशी होगी। शहजादी ने साहिल का शुक्रिया अदा किया और साहिल वहाँ से चला गया। उसकी आंखें नम थीं, जो वो शहजादी से छुपा रहा था। साहिल जानता था कि चंबेली शहजादी उसे कभी नहीं मिल सकती, मगर वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहा था। रात को शहजादी चंबेली और शहजादा रयान की क्रिस्टल पैलेस में मुलाकात हुई, वहीं जहां उनकी पहली शादी की तकरीब होनी थी। शहजादी, मुझे माफ कर दें, मुझे आप पर यकीन करना चाहिए था, मगर अब शादी के बाद आपको मुझसे कोई गला नहीं होगा। शहजादे, मैंने आपको माफ कर दिया, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं शहजादी? आप शादी क्यों नहीं कर सकती? शहजादे, मोहब्बत का मतलब एहतिमाद होता है, जो आपको मुझ पर कभी नहीं था। मोहब्बत करना मैंने साहिल से सीखा। साहिल ने मेरा हर मुश्किल में साथ दिया, जब सब ने मुझे छोड़ दिया था। और अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं साहिल से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दें। शहजादी ने जाकर शाही मुहाफिजों से साहिल के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो जा चुका है। शहजादी चंबेली साहिल को ढूंढते हुए झील पर आई और उसकी नजर साहिल पर पड़ी, जो वहां उदास बैठा था। आप यहाँ कैसे आए? सब ठीक है, आपकी तो शादी होनी थी। शादी जिससे होनी है वो तो यहाँ है।
तो शादी कैसे हो सकती है? आप क्या कह रही हैं? मैं समझा नहीं। क्या तुम नहीं चाहोगे पूरी जिंदगी मुझे चंबेली के गुजरे पहनाओ? साहिल की बेगर्ज मोहब्बत ने बताया कि मोहब्बत का दूसरा नाम भरोसा है, हर मुश्किल में साथ खड़े रहना और कभी किसी सूरत साथ न छोड़ना। अगर आप कहानी को जारी रखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।